ہر مجلس کی ابتدا مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے ہو۔ میں قاری زاہد صاحب کو سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس محفل کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، اب ہمارے مہمان معظم حضرت ٹی بشیر الدین صاحب کے دست مبارک سے پرچم کشائی کا مبارک عمل شروع ہونے والا ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لا کر پرچم کشائی فرمائیں۔ जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है, मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी खतरे में हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरे आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान
ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں۔ ہمارے سرحدوں میں نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہ آپس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مٹا دیتے ہیں خود کو ہند، ہم کو جان سے پیارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے۔ ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی۔ ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی۔ جہاں پہ پاؤں رکھتے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی۔ ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں۔ میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں۔ مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں۔ لہو کا آخری خطرہ وطن کا ہو گوارا ہے، یہ ہندوستان یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا 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 ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ میں اب ہمارے مہمان معظم سے نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حالات حاضرہ پر کچھ مخصوص حالات حاضرہ کے نظر میں نصیحتی انداز سے کچھ بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم محتمم مدرسہ حاضہ، اساتذہ کرام، طلباء اور طالبات، مہمانان خصوصی، میرے عزیز دوست اور نہرو یووا کیندرا کے ذمہ دار جناب یل محمد عمران صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مدرسہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس احاطے میں ترنگا لہرایا گیا ہے۔ مجھے اس
बात की बड़ी खुशी है कि मुझे हमेशा से बाज़ हजरात खुसूसन जो गैर कौम हजरात हैं वो मुझसे यही शिकायत कर रहे थे कि भाई जब यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया मनाया जाता है तो तमाम स्कूलों, कॉलेजों, गवर्नमेंट ऑफिसों तमाम में जो है तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन तुम्हारे मदरसों में ऐसा क्यों नहीं होता? मैंने कहा कि भाई हमारे मदरसों में भी तिरंगा लहराया जाता है, चूंकि इहाते के अंदर होता है ये काम, इस वजह से आप लोगों को नजर नहीं आता। फिर भी वो लोग मुझसे इस वजाहत से तशफ़ी बख्श नहीं होते। तो इसका वजह क्या है? ये तिरंगा यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया, इन मौक़े पर ये तिरंगा क्यों लहराया जाता है? इसमें हम मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है? मैं इन बातों को चूँकि मुझे और भी जगह में जाना है, मुख्तसर तौर से अब आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। देखिए 1940 में 60 से पहले हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों की हुकूमत में इक़्तिसादी हैसियत से, डेवलपमेंट की हैसियत से बहुत डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन इंसान होने की वजह से हर एक को बोलने की, अपने ख्याल पेश करने की, अपने मजहब पर अमल करने की, इन तमाम की आज़ादी ज़रूरी है। तो अंग्रेज़ इस अहम हक से, हुकूक से हमको महरूम रखे। वो रेलगाड़ियाँ चलाए, पटरियाँ लगाए, हवाई जहाज लगाए, सब कुछ किए, लेकिन हमारा जो बुनियादी हक है उसको छीन गए। हत्ता कि उन्होंने उस वक्त जो भी मदरसे थे, मकतब थे, वो एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते थे। हमारे हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मरहूम लाल बहादुर शास्त्री वगैरह कहाँ पढ़े थे? मदरसे में ही पढ़े थे। तो मदरसे में उस वक्त इश्तराकी तौर से दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होती थी। आपको पता है कि ताजमहल को उस्ताद ईसा लाहौरी ने बनाया था, तो उन्होंने वो इंजीनियरिंग कहाँ पढ़ा? उन्होंने मदरसे ही में पढ़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज को नहीं गए। तो उस्ताद ईसा लाहौरी की इंजीनियरिंग ऐसी है कि आज तक दुनिया उसको सराह रही है। इंशाअल्लाह अगर वो ता क़यामत तक उसे रखेंगे तो सराहते रहेंगे। तो वो कहाँ के प्रोडक्ट? मदरसे में पढ़े थे, उन्होंने मकतब में पढ़े थे, हमारे मदरसों में। तो अंग्रेज हजरात क्या किए? ये जो आज़ादी की जो लड़ाई है, इसमें मुसलमानों का हिस्सा ज़्यादा है और इसकी बुनियाद मदरसा है, तो मदरसे को बंद करो। तो मदरसे को बंद करने लगे, तो दीनी और दुनियावी तालीम दोनों ठप पड़े। तो इसी वजह से खुसूसन मुसलमान और खुसूसन उलमाए किराम इस आज़ादी की जंग में उन्हीं का ज़्यादा हिस्सा था। आज भी जाकर आप देखेंगे तो इंडिया गेट, दिल्ली में इंडिया गेट है, उसमें जो भी आज़ादी की वजह से जो शहीद हुए उनके नाम लिखे गए हैं। तकरीबन 1 लाख नाम लिखे गए हैं। उसमें 60,000 नाम किसके हैं? मुसलमानों के। तो हमारी तादाद, हमारी आबादी उनकी निस्बत से कम, लेकिन हमारी कुर्बानी उनसे ज्यादा। तो हिंदुस्तान की आज़ादी अगर किसी से मिली तो वो मुसलमानों ही की वजह से मिली थी हमको। लेकिन हम क्या करते हैं, ये आज़ादी वगैरह ये सब क्या है भाई? ये उन लोगों का मामला। भाई हमको क्या झंडा, तिरंगा झंडा लगाना, उसे सैल्यूट कराना, ये सब सैल्यूट मत कीजिए। कौन किसने कहा आपको सैल्यूट? अगर सैल्यूट करना मना है तो मत कीजिए। तिरंगा झंडा को सैल्यूट करना कोई अहम जुज नहीं है। आप तिरंगा लहराना है तो आप
دینی حیثیت سے جو کام کرنا ہے اس کو کیجئے۔ تو اسی وجہ سے وہ لوگ کیا کیے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ہندوستان کے باوجود اس کے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ فٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو اب وہ کیا کریں گے؟ وہ ہم کو انفٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم سٹیزن شپ کے لحاظ سے فٹ نہیں ہو رہے، وہ انفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا بھی کچھ تھوڑا حصہ ہے، لیکن مجھے بڑی مسرت ہے کہ مدرسہ حسان بن ثابت آج جو ہے یہ جشن کے حیثیت سے، گویا کہ اسکول میں بھی میں بھی ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں، اسکول میں بھی میں اس طرح سے اتنا زیادہ اس کے لیے انتظام نہیں کیا تھا، اتنا انتظام کر کے یہاں پر آج یہ ترنگا لہرائے ہیں۔ میں اس کی مبارکبادی دیتا ہوں اور اس کو قائم کیجئے، اور تمام مدارسوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کو فالو کریں۔ اسی وجہ سے جو ہے آج ہم اس ہندوستان کی شہریت کے زیادہ حقدار بنیں گے۔ اب رہا آزادی کیا ہے، جمہوریت کیا ہے، اس بات کو میں ایک تھوڑی بات کہہ کر میں اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو آزادی 1940 پر 60 سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے ہم پر بہت سے مظالم ڈھالے، تو ہمارے لیڈر کہا جاتا ہے کہ ہمارے آرکاٹ کے مولوی احمد علی، انہوں نے ایک آرمی ہی بنا دی تھی اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ چھیڑ دی تھی، اور ان کا معاہدہ ایودھیا کا اس کے راجہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن آخر میں ایودھیا کا راجہ ان کو دھوکہ دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، اس وجہ سے مولوی احمد علی شہید ہوئے، ورنہ مولوی احمد علی صاحب اسی وقت ہندوستان کو آزادی دلا دیتے۔ تو اس میں علماء کرام کا بہت زیادہ حصہ ہے، وہی پیش رہے، آگے رہے، اور کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ اصل دین پر اس کا اثر پڑ رہا تھا انگریز حکومت کی۔ آخر میں انگریزوں نے کیا کیا؟ بھائی بس اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ پورے ہندوستانیوں کو عیسائی بن جانا چاہیے۔ اب یہ جیسا کہہ رہے ہیں کہ ون نیشن ون لینگویج ون ریلیجن، تو وہ بھی وہی کہنے لگا ون ریلیجن ون نیشن، تو ان کا ہندی ہے اور ہندو ہے، اس نے کہا کہ انگلش اور دی انگلش، یعنی انگلش بنا اور کرسچین بنو، تو اس کا نعرہ، تو اس کو جو ہے 1940 سال پہلے آزادی ہم حاصل کیے۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد تو انگریزوں کے زمانے میں 1940 پر 7 تک، یعنی 14 اگست تک کیا حکومت تھی؟ انگلینڈ کی طرف سے یہ گورنر جنرل رہیں گے، جیسا آج وزیر اعظم ہیں ویسا ایک گورنر جنرل، تو وہ ایک گورنر جنرل کو انگلینڈ کی حکومت کی جانب سے یہاں پر نامزد کیا جاتا، وہ یہاں پر حکومت کرتے تھے۔ تو لاسٹ گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، ان کی حکومت تھی۔ جب ہندوستان آزاد ہوئی تو اس کے بعد کیا کیے؟ اس حکومت کو ہندوستان کی طرف سے یہ گورنر جنرل بنایا گیا۔ تو وہ گورنر جنرل کون تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تمل ناڈو کے رہنے والے سر راجگوپال آچاری، وہی فرسٹ گورنر جنرل تھے ہندوستان کی جانب سے، تو ان کے حوالے حکومت کر دیا گیا۔ اب مسئلہ آیا کہ اب آگے حکومت کس طرح کی ہو؟ کیا جیسا انگریز حکومت یہاں چلا رہے تھے گورنر جنرل کے ذریعے، کیا اس طرح سے ہو، یا بادشاہ کے ساتھ دیا جائے، یا جمہوریت کو اس کو بنا دیا جائے، یا خود یہ حکومت کن سے چھینی گئی تھی؟ ہم سے، مغل حضرات سے، مغلوں سے چھینا گیا، کیا اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے؟ تو اس طرح سے بہت سے جو ہے تجاویز جو ہے آئے، تو ان کا یہ فیصلہ، متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہندوستان کو ایک جمہوریہ، ڈیموکریسی، جننایگم، اس طرح کا ایک ملک بنا دیا جائے گا۔ یہاں پر بادشاہیت نہیں رہے گی، یہاں پر آمریت، ڈکٹیٹرشپ نہیں رہے گی، یہاں پر گورنر جنرلشپ نہیں رہے گی، بلکہ حکومت لوگوں کے پاس رہے گی، فار دی پیپل، بائی دی پیپل۔ تو کس کے واسطے؟ یہ حکومت ہماری جانب سے ہمارے لیے بنے گی حکومت،
تو इस तरह की एक हुकूमत बनेगी, तो इसके जरिए से एक आइन बनाया जाए, एक अरसियल चट्टम, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो इस हमारे मोहतरम मरहूम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में एक कमेटी बनाया गया कि एक आइन को वो तश्कील दे, आइन को बनाए, அரசியல் அமைப்பை உருவாக்குவதற்கு அவர்களுக்கு இந்த பொறுப்பை ஒப்படைத்தார்கள். அந்த குழுவிலே தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நிறைய பேர் இருந்தார்கள். அப்போதைய இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்குடைய தலைவர் காயிதே மில்லத் இஸ்மாயில் சாஹிப் கூட அதில் ஒரு உறுப்பினராக இருந்தார். இவர்களெல்லாம் பேசி ஒரு அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கினார்கள். இந்த அரசியல் சட்டம் 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி, that is today is January 26, it is 2020, but that is 1950. 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 26ஆம் தேதி அந்த சட்டத்தை நாம் கான்ஸ்டிடியூஷனாக எடுத்துக்கொண்டோம். அதனால்தான் 1947 ஆகஸ்ட் மாதம் 15ஆம் தேதி சுதந்திரம் பெற்றதால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தினத்தை நாம் கொண்டாடுகிறோம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆண்டும் जनवरी मादम 26ஆம் தேதி जनवरी 26 को जो है यौम जमहूरिया कुडियरस दिनम रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। अब रहा हम आजादी के दिन को बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं, लेकिन यौम जमहूरिया को इसी तरह से छोड़ देते, उसकी कोई अहमियत नहीं देते। लेकिन मुसलमानों की हैसियत से हमको यौम आजादी के से बनिस्बत यौम जमहूरिया ही की ज्यादा अहमियत है। क्यों? इस जमहूरी हुकूमत ही की वजह से हम जो यहां पर हिंदुस्तानी हैं सबको, अब जो पूरे कह रहे हैं ना आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 वो क्या कह रहा है? हिंदुस्तान में मजहब के लिहाज से, रंग के लिहाज से, जात के लिहाज से, जबान के लिहाज से, मर्द और औरत के लिहाज से किसी में कोई क्या नहीं, क्या नहीं, फर्क नहीं। सबको क्या मिलेगा? बराबर का हक मिलेगा। ये कब मिला? ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही। तो इसी वजह से आज हम क्या हैं? हालांकि इसको क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान के नाम से ये मुल्क मुसलमानों के लिए बन गया। अब यहां क्या होगा? सबको तशवीश थी, तो लोगों ने क्या किया? ये आइन में क्या है? जैसा उनको हक है उसी तरह का हक हमको भी मिला। वो कब? यौम जमहूरिया के दिन। तो आप ही बताइए कि हमको जो है यौम जमहूरिया ज्यादा अहम है या यौम आजादी? आजादी भी अहम है, उसके बनिस्बत यौम जमहूरिया ज्यादा अहम है। उसी तरह आर्टिकल 28, 29 इसमें जो है ये जो हम जो मदारिस चला रहे हैं उसके हक हमको मिला है कि माइनॉरिटीज जो हैं यहां पर जो लिंग्विस्टिक या मजहबी लिहाज से जो माइनॉरिटी हैं वो अपने मदरसों को चला सकते हैं, अपने कल्चर को बचाने के लिए और अपने जबान को बचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? मदरसा चला सकते हैं। इसके लिए हुकूमत के पास जाकर इजाजत लेने की जरूरत नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता। अगर जरूरत बना दे तो उन्हें क्या करेंगे? इजाजत देगा क्या? नहीं देगा। तो आज हम जो मदरसा चला रहे हैं वो यौम जमहूरिया की वजह से, इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, क्योंकि उसी में से कहा गया कि माइनॉरिटीज को यह हक हासिल है कि वो क्या कर सकते हैं? मदरसा चला सकते हैं। वो जो भी जबान वो बोलेंगे वो बोल सकते हैं। जो भी पढ़ाई चाहे वो मदरसे में पढ़े चाहे स्कूल में पढ़े उनको हक है। ये भी जमहूरिया की वजह से ही है। वो जो भी अपना मजहब को इख्तियार करेंगे वो भी है।
बल्कि अपने मजहब को प्रचार करने का, अपने मजहब को दूसरों में प्रचार भी कर सकते हैं। यह आजादी मिलेगी क्या भाई? अगर आप हमारे जो कंट्रीज है, अरब कंट्रीज वगैरह में जाकर वहां पर गए तो वहां पर दूसरे मजहब की प्रचार करना होगा क्या? इजाजत नहीं, वहां जेल में डाल डालेंगे। वहां सिर्फ हमारा ही मजहब। लेकिन इंडिया में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, बावजूद माइनॉरिटी होने के हम क्या कर सकते हैं, अपने मजहब को प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें आइन में है और लगभग है। लेकिन हमेशा होता क्या है, जो हुक्मरान हैं वो इस कानून को जिस तरह डील करते हैं उसी तरह से बन जाता है। तो अब तक जो हुक्मरान हमारे थे वो इस आइन पर, हालांकि वो अच्छे हुक्मरान नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने इस तमाम चीजों पर हाथ नहीं रखा। आर्टिकल 14 में हाथ नहीं रखा, आर्टिकल 28, 29 में हाथ नहीं रखा। तो वो चाहे खोलो भाई मुसलमान, चाहे उनकी हुकूमत अच्छी हो या खराब हो, लेकिन इन तमाम चीजों में वो लोग क्या नहीं, आड़े नहीं आए। लेकिन अब जो हुकूमत है वो क्या कर रही है, इन चीजों में आड़े आ रही है, क्योंकि इनका मंशा ही यही है कि हिंदुस्तान को जो आर्टिकल 14 में जो दिया गया है, तमाम मज़ाहिब को मसावी हक, इक्वल राइट, उसको उठा दिया जाए, सिर्फ एक मजहब वालों को यह हक दे दिया जाए, और जो ज्यादा मेजॉरिटी मजहब उसको दे दिया जाए। माइनॉरिटी मजहब जो है वो उनके गुलाम बन के रहें या सेकेंडरी लिहाज से बनकर रहें। तो ये हुकूमत का मंशा है। अब इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, आज ये CAA, आपको मालूम है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको ला रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, NPR, इंशाअल्लाह 14 अप्रैल से जो है उसको नाफिज करने का उनका इरादा है। उसके बाद NRC। तो CAA क्या है, उन्होंने क्या बनाया कि हम ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो मजहबी अखिलियत वाले हैं और उन पर मजहब के नाम पर जो जुल्म हो रहा है, उनको हम सिटीजनशिप दे रहे हैं। उसमें सिवाय मुसलमानों के पूरे शामिल। वो कहते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई मुसलमानों को क्यों जी नहीं जोड़ रही तुम्हें? पहले हम ये कह रहे हैं कि हमेशा सिटीजनशिप देने का हमारे जो पड़ोस हैं, हमारे जो वही होते हैं, और हमारे पड़ोस में सिर्फ ये 3 ममालिक नहीं, हमारे नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, बर्मा है, श्रीलंका है, ये तमाम हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। यहां पर भी माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहा है। श्रीलंका में तमिलियंस पर जुल्म हो रहा है, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, चीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, भूटान में ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है। इनको तमाम नहीं लिए। उनका मंशा क्या है, किसी तरह से मुसलमानों को कट किया जाए। और इसमें भी खोट है, क्योंकि कश्मीर में आप जाकर देखेंगे तो तकरीबन 15,000 रोहिंग्या मुसलमान अभी शरणार्थी बनकर बैठे हैं वहां पर। उनको भी देना चाहिए था। खुद ये मुसलमान तस्लीमा नसरीन की नाम से एक औरत है, उसको तो उसके जो ख्यालात हैं वो हमारे से मुनाफिक नहीं, हमारे मुनासिबत नहीं रखते, लेकिन उनके हिसाब से वो मुसलमान है। अब उसको भी जो है वो शरणार्थी दिए ही। अगर बांग्लादेश में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है तो तस्लीमा नसरीन को तुम्हें कहा कि शरणार्थी बनाए ही? हमारे ख्याल में नहीं है, हम उसके सपोर्ट नहीं करते, लेकिन तुम तो सपोर्ट कर रहे हो, क्यों करते? तो इससे मालूम होता है कि वहां पर भी माइनॉरिटीज, मुसलमानों पर भी जुल्म हो रहा है। तो ये कानून क्यों है? मुसलमानों को मिटाना है, हमको खत्म करना है, हमको सेकेंडरी सिटीजन, पहले सेकेंडरी सिटीजन बनाएंगे, होते होते क्या कहेंगे, अगर आपको इंडिया में रहना है तो उस मजहब पर, जो मेजॉरिटी मजहब है उस पर रहो, अदरवाइज गो। तो ऐसे हालात आ रहे हैं। इसी वजह से अब NPR लाया रहा है। आपको मालूम है कि हर साल हम भी आए, आपके घरों को आए रहेंगे। 1948 में एक एक्ट है, सेंसस एक्ट। सेंसस
सेंसस क्या करेंगे, आएंगे तुम्हारे घर को आएंगे, भाई कितने ही कौन ये घर के बड़े कौन, अच्छा कौन बेटे कौन, बेटियां कौन, बहू कौन, सास कौन, पूरे गिन लेंगे उनको, उनका एक हिसाब उठा लेंगे। और साथ ही साथ उसमें क्या रहेगा, क्या काम करते हैं, क्या पेशा करते हैं, क्या ये है, वो सब उठा लेंगे। ये 15 मद पर हिसाब होगा। इसे बोलते हैं सेंसस एक्ट। लेकिन सेंसस एक्ट का हुकूमत पर क्या है, जो उसमें मिसाल के तौर पर बशीरुद्दीन ही इमरान हैं, इमरान के घर में आकर सेंसस लिए तो इमरान के बारे में पूरा तफसील ले लिए, लेकिन हुकूमत को राइट नहीं सेंसस एक्ट के तहत उठाए तो कि इमरान का क्या तफसील है, क्या पढ़े, क्या करे, इनके अब्बा कौन, कौन से गांव वाले, ये सब क्या नहीं करना, सेंसस एक्ट के तहत नहीं। बल्कि सेंसस उठाने के बाद उन्होंने क्या करेंगे, खाली एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, खाली मर्दमशुमारी, कितने मर्द हैं, कितने औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितना ये काम करते हैं, कितना वो काम, खाली नंबर उतना। जाती तफसील पर्सनल डिटेल्स नहीं मिलेगा। तो इसको डिविएट करने के वास्ते अब क्या करते हैं, तो एनपीआर का नाम उठा रखा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके तहत उठाए तो इमरान का पूरा डिटेल उठाया जा, उनको हुकूमत को हक है। सेंसस एक्ट के तहत उठाए तो नहीं, एनपीआर के तहत उठाए तो है। तो हमारा ये मांग है हुकूमत से, तो इतने साल से जो चल रहा है, 1948 से जो चल रहा है, वैसा सेंसस एक्ट के तहत तुम्हें उठाओ। एनपीआर क्यों लाते ही, एनपीआर लाने के बाद उसे तुम्हें क्या करेंगे, एनआरसी में करेंगे। और एनआरसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, एनआरसी आया तो क्या होगा आप तमाम जानते हैं। तो बहरहाल मुल्क का जो है हालात जो है माइनॉरिटीज के लिए इतना ज्यादा साजगार नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। कोई बाप हमको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारा ये खौफ तो आपको मालूम है, हम फिरौन से भी मुकाबला किए, नमरूद से भी मुकाबला किए हैं, वो खुद हमको कुछ बाल बिगाड़ नहीं कर सके। तो ये बेचारे ये क्या करेंगे, जो कि हिंदुस्तान के बाशिंदे ने ये खुद बाहर से आए, हमारा क्या करेंगे, ये हमको कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं करने, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम यहां पर रहना है तो हमारे जो रिकॉर्ड्स वगैरह है उसको बराबर करके रख लो। लेकिन वो आकर पूछेंगे तो जमात में फैसला करेंगे कि देना है या नहीं देना, इंशाल्लाह ऐलान होगा, वो जैसे जमात में ऐलान होगा उस तरह से कीजिए। बहरहाल जो भी होगा, जो नेशनल स्ट्रीम है, देश का काम ऐसा झंडा लहराना या देश के नाम से जाना, या तो हम एहतजाज किए तो झंडा करना। आज जो है मैं आते वक्त देखा कि जनाब इमरान साहब उनके घर में झंडा लहराए, हमें भी कर सकते हैं, हमारे घरों में भी क्या कर सकते हैं, झंडा लहर। क्योंकि वो हमेशा कहते हैं तुझे इंडिया में क्या है, तुझे पाकिस्तान जाकर बोलते हैं, हमें क्या बोलना, इंडिया को बनाए से कौन भाई हमें, तब हमें क्या कर सकते हैं, आज ये झंडा एक लहरा सकते हैं। तो इस तरह के काम को जो है हम करते हुए रहना चाहिए। मैं फिर से, चूंकि वक्त कम है, मैं आप लोगों को खुसूसन मदरसा हसन बिन साबित को मुबारकबादी देता हूँ कि वो दीनी लिहाज से भी, कितने बच्चे पढ़ते हैं वो, 70 बच्चे, अच्छा 70 बच्चे पढ़े, अच्छा अच्छी तरह से तुम जो है, क्योंकि मुसलमान होने की हैसियत से हमारी बुनियाद दीन नहीं, क्या हमारी जिंदगी जो है 60-70 साल यहाँ से रखो चले जाएंगे, बाद हजारों साल हमेशा की जिंदगी कौन सा भाई, कौन सी जिंदगी, आखिरत की जिंदगी। तो आखिरत को सुधारना है, इसके साथ साथ जो है मदरसे में ये तमिल वगैरह सब पढ़ाती हैं, वो भी पढ़ाओ, तमिल इंग्लिश सब पढ़ाओ। हमेशा हुकूमत का क्या है, तुम्हें खाली इनको जो है मजहब की तालीम, कुरान की हदीस की तालीम देकर उनको क्या करते हैं, उनको इंतहा पसंद बनाते हैं, टेररिस्ट बनाते हैं, भयंकरवादी बनाते हैं। उनका ये है, ऐसा नहीं, हम जो है असली तालीम भी देते हैं, दीनी तालीम भी देते हैं। इस तरह से आप कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ है कि हसन बिन साबित मदरसे को दिन दूनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हजरत मेहमान मोहतरम के एजाज़ में शान खुशी की जाएगी हजरत नाज़िम साहिब के दस्त मुबारक से।
விளம்பரம் செய்வதற்கு தொடர்பு கொள்ளவும். Zafar Digital Ads 9944569377.